ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਖੀ ਔਰ ਪੰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਪੰਜ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਅਬ ਆਬ ਪਾਣੀ, ਬਾਏ ਹਵਾ, ਤੇਜ ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਸ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਸ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੱਖ ਕੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੂੰਘ ਕੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਮ ਸਰਦ ਜੋ ਖਲੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਪੰਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਘ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਖ ਕਰਕੇ। ਚੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਲੂਣਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸੂੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਕਠੋਰ ਗਰਮ ਸਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਤੱਤ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, 6 ਦੀ ਨਹੀਂ, 4 ਦੀ ਨਹੀਂ, 5 ਸਿਰ ਮੰਗੇ। ਫਿਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਅਦਕੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ।
इन्हां पंज प्यारिਆਂ ਦੇ जन्म अस्थान तो जलूस चल के आनंदपुर साहब पहुंचे। बिदर तो, जगन्नाथपुरी तो, हसनापुर तो और इस तरह लाहौर तो ते द्वारका तो, ये पंज प्यारे इन्हां शहरां दे सन। जगन्नाथपुरी तो जिहड़ा जलूस चल के आया उहदे च उड़ीसा दे लोग सन। बिदर तो जो चल के आया उहदे च कर्नाटक दे अधिक लोग सन। और द्वारका तो जिहड़ा जलूस आया आनंदपुर साहब पहुंचे उहदे च अद्धे गुजराती सन। हसनापुर यूपी दे च मेरठ दे नेड़े। हसनापुर तो जिहड़े आए भाई धर्मचंद दे रिश्तेदार अज भी मौजूद ने, कोई 100 तो ज्यादा ये प्राणी सन। इन्हां ने उसे दिन आके आनंदपुर साहब अमृतपान किया। भावें सारे हिंदू सन, वो जलूस दे नाल आए। एक अजीबो गरीब शक्ति धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उत्थे व्यापक देखी। तो मूल मैं अर्ज करा, आपने 5 सिरां की मंग की थी। और गजब की गल, ये पंजे वख-वख भाषा बोलते सन। एक पंजाबी बोलता सी, एक गुजराती बोलता सी, एक कन्नड़ बोलता सी, एक उड़िया बोलता सी, एक हिंदी बोलता सी। इन्हां पंजां दी भाषा अलग अलग सी। 5 वख-वख गोत ते जात तो सन। ये 5 वख-वख इलाकियां तो सन। सिखी दा दायरा सतगुरु बहुत वसी चाहते सन। इहदी लपेट दे विच सिर्फ एक इलाका नहीं, सारी दुनिया चाहिए। रब्बी सिद्धांत, सिद्धांतक नुकते, वर्ण बेख तो न्यारे, जात पात तो न्यारे, मजहब ते भाषा दी वंड तो न्यारे। एक इस तरह दे धर्म दी रूपरेखा गुरु नानक ने चितरी सी, जिन्हों पाया तकमील तक ले जाण दी पूरी कोशिश धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की थी। आपने 5 सिरां दी मंग की थी। जो देण वास्ते तैयार होए उन्हां दी झोली दे च 5 रहतां पाईयां तन लई, 5 रहतां पाईयां मन लई। हैरानगी है, 6 रहतां हो सकदियां सन, 7 हो सकदियां सन, 4 हो सकदियां सन। 5 बाणियां दा ही पाठ, 5 ककार तन लई। इस हिसाब नाल मैं देखिया है, मुहम्मद साहब की पकड़ दे च भी ब्रह्मंड की यह रचना जरूर आई सी। मुसलमान की झोली दे च 5 नमाज़ां पाईयां, 5 वक्त की नमाज। 4 नमाज़ां दे सकते सन, 3 नमाज़ां की गल कर सकते सन, 6 की गल कर सकते सन, 5। मुहम्मद साहब दे दिल दिमाग दे भी उपर भी 5 की गिणती का प्रभाव है। और मुसलमान की झोली विच 5 वक्त की नमाज पांदे ने। भारत विच समाजिक, धार्मिक ते राजनैतिक फैसलियां लई 5 बंदे जो चुने जाते सन, उन्होंने कहते सन पंचायत। उन्हां 5 का फैसला मनना ही पैंदा सी। उन्हां 5 विचों कोई एक भी किधरे लंघ रहा होवे या किसी के घर आवे या किसी ने बुलाया है तो लोकी कहते सन पंच है, ये पंच है, ये मुखी है, ये उन्हां 5 विचों एक है। तो इत्थे पंच प्रवान दे अर्थ ने वो जो संत है जिस दे अंदर सत दा वासा हो गया, जो सत नाल जुड़ गया है, जो सतसंगी हो गया है, संत है, ये पंच है। ये सारा खुलासा आपने कल सरवण की था। पर ये जिहड़े पंच ने जो दरगाह दे विच प्रमाण ने, संसार दे विच भी प्रमाण ने और प्रभु दे दर दी भी शोभा ने, संसार दी भी शोभा ने
क्या ये परमात्मा की कृत की पूरी विचार कर सकते हैं? जो करते की कृत है, करते का पता चलता उसकी कृत तो, उंज नहीं। करता कितना वड्डा है या छोटा है उसकी कृत दसेगी। दूसरा, मनुख दे बोल दसणगे ये मनुख की है। रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। जितने चिर तक 5-10 दिन किसी की गुफ्तगो ना सुनी है, किसी दे बोल ना सुनी है, मनुख दे ऐब ते हुनर दा नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। इहदे च ऐब की ने, इहदे च गुण की ने? ये रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, इहदे बोल दसणगे। बोल चाल तरजे बयानी गुफ्तगू दे मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ दे जो कुछ है सारे दा सारा प्रगट हो जाता है। बोलना मनुख दी एक कृत है। बोल के मनुख खुद प्रगट होता है, एक ही है। फिर उसने जो कुछ बनाया उसकी होर कृत जो है, उस कृत तो पता चलेगा एक करता कितना क वड्डा है। कविता तो ही अंदाजा लगेगा कितना महान कवि है या एवं ही है। संगीत की धुन तो पता चलेगा कितना क वड्डा संगीतकार है। किसी तस्वीर नूं वेख के ही मुसव्वर का पता चलेगा। तो वो जिहड़े पंच जन ने, संत जन ने, करते की जिहड़ी कृत है उहदी पूरी विचार क्या कर सकते हैं? इत्थे तक कल आपने श्रवण कीता सी, जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। अगर ये पंच भी बैठ के विचार करन करते दे करने दियां, तो करना शुमार दे च नहीं आ सकता, गिनती दे च नहीं आ सकता। उस करते दी कितनी वड्डी कृत है और उसने की बनाया है, ये संत भी गिन नहीं सकता। सतगुरु ते कहंदे ने वड्डे तो वड्डा जो अवतारी पुरुष है, जिसकी सेवा लगी है जगत दे संभाल लई, वो भी अंत नहीं पा सकता। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। ना वो गिणती दे चाहुंदा है, ना वो तोल दे चाहुंदा है, ना वो नाप दे चाहुंदा है। अणगिणत है, असीम है, अतुल है। जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। वो जो करता पुरख है, उहदे करने दी, उहदी कृत दी शुमार भाव गिणती नहीं हो सकती। संत भी नहीं कर सकता। बूंद सागर दे च लीन हो सकती है, सागर दा रूप हो सकती है, पर सागर दे च किन्नियां होर बूंदां ने, ये जल किन्ना है, ये बूंद नहीं गिण सकती, ये नहीं नाप सकती, ये नहीं तोल सकती, इतनी समर्था नहीं है। सुरत शब्द दे च जोड़ के परम आनंद मान सकती है, और ऐसा मनुख परमात्मा की झलक पेश कर सकता है। फिर भी उस करते दे करने की पूरी विचार करनी कठिन कठिन है। इत्थे तक कल आपने जो है श्रवण कीता। अगलियां जिहड़ियां पंक्तियां ने वो लड़ीवार आप श्रवण करो। ये एक पौड़ी ऐसी है जिवें सोदर दी पौड़ी वड्डी है, ये भी बहुत वड्डी है, पर सोदर दी पौड़ी दे च मजमून इको चलदा, इस पौड़ी च मजमून एक नहीं है। वो जो करते दे करने ने उन्हां दी सिरमौर ने कौन? संत। ये परिपूर्ण परमात्मा दी बहुत वड्डी देन, ते या इंज कह लो परिपूर्ण परमात्मा दी बहुत वड्डी कृत।
भावें उसने सूरज बनाए, चंद्रमा बनाए, भावें उसने धरतियां बनाईयां, पर उसने संत बनाने दा, बनन दा एक जो वसीला पैदा किया है कि जो संत बन गए सब तो सिरमौर है। अगर कुदरत के विचार करिए तो संत सब तो पहले, अगर संसार के विचार करिए तो भगत सब तो पहले। इस वास्ते कुदरत के विचार दियां ये 4 पौड़ियां, लेकिन आरंभ करते ने गुरु नानक संत तो, 5 चों इत्थों गिनती करते हैं। संत सब तो सिरमौर, सूरज भी पिछे ने, चंद्रमा भी पिछे ने, सब कुछ पिछे, ये सब तो सिरमौर। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोए। समुचे ब्रह्मंड दे संत अदुੱਤੀ है और मनुखां विचों भी सिरमौर है। अगर मनुखां विच कोई दानी है, कोई राजा है, कोई ज्ञानी है, कोई सूरवीर है, कुछ भी होवे, कोई विद्वान है, भगत दे मुकाबले ते नहीं है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत सिरमौर है। ये दानी ज्ञानी सूरवीर सब बात विच, ये विज्ञानक, ये संसार का ज्ञान रखने वाले, ये सूरवीर, ये बड़े बड़े परोपकारी, ये सब बात विच, सब तो पहले ये संत है, ये भगत है। तो सतगुरुदेव जी महाराज अगे जो हुण विचार दस रहे ने, करते दा जो करना है, उस बारे भारत दे प्राचीन ऋषि मुनि कहते ने, परमात्मा ने जमीन बना के पुराणक प्रसंग, इहदे थल्ले एक दौला बैल खड़ा कर देता है, बलद। इस तरह दीयां साखियां थानू ईसाई जगत विच, इस्लामी जगत विच, हिंदू जगत विच मिलणगियां। पुराणक प्रसंग इन्हां नूं कहंदे ने। करीबन करीबन ये 90% ज्ञान विज्ञान ते पूरे नहीं उतरते, पर झूठ भी इन्हां नूं नहीं कह सकते। उन्हां दे समझाण दा ढंग ही यही सी, कहण दा ढंग सी। इनू कहंदे ने रमज दे, जिहड़ी गल उन्हां ने आखी है उन्होंने खोल के समझना पेगा, पर रमज खोलनी हर एक नूं आउंदी नहीं। जिवें परिपूर्ण परमात्मा सानू बहुत सारे फल देंदा है, पर छिलकियां दे लपेट के, बदाम ने, अखरोट ने, संतरा है, केला है, सब दे ते छिलके चढ़े ने। सी खाणी गिरी आउंदी है, छिलके पड़े सुटने आउंदे ने, पर एक कोमल वस्तुआं परिपूर्ण परमात्मा सानू छिलकियां दे लपेट के पेश करता है। अगर किसी मनुख नूं असलियत ना पता होवे फल दे, तो हैरान रह जाएगा। जद कदी इस तरह की कथा चले तो एक घटना मैनू चेते आ जाती है, थाईलैंड की 25-30 साल पुरानी। रात के 12 बजे उतरे, गुरुद्वारे पहुंचे, प्रबंधक साहबान कहन लगे, लैके गए भी असीं लंगर तैयार किया होया ते छक लो। मैं कि मैनू थोड़ा बहुत मिल गया सी रस्ते च, ते हुण अद्धी रात तो भी ज्यादा हो गया, छकना नहीं। भाई साहब भाई अर्जन सिंह गुरमुख प्यारे, जो उथों दे ग्रंथी सन, हुण ते नहीं रहे, पिछे ननकाणा साहब रहे ने, बड़े विद्वान। वो मेरे कमरे विच फल ले आए, कहने ज्ञानी जी सौण तो पहले फल ते छक लो, चलो होर ने कुछ खाना थे। ते मैं हैरान हो गया, थाईलैंड विच लोकी बैंगणा नूं फल कहंदे ने, बैंगण वर्गे सन, छोटे छोटे जिवें बैंगण होंदे ना गोल, इस तरह। मैं कहा अजीबो गरीब लोकी नहीं थे, बैंगण नूं फल कहंदे ने। और फिर भाई साहब ते पिछों पंजाब तो ने, ननकाणा साहब तो ने, शेखोपुरा तो ने, इन्हां नूं तो सब कुछ पता है, ये सब्जी है, पर ये भी फल कह रहे ने, फल खा लो। काफी देर जद बैठे रहे तो मैं सोचता रहा, भाई साहब जाणगे तो भाई साहब ये सोचने खावन, तो मैं असलियत कबूल कर ली। मैं कि भाई साहब जी गल ही नहीं है, ये फल ने। हस पे
कहने लगे मैं थोड़ी दुविधा समझ गया सी, हाँ फल ही ने। उन्होंने तोड़िया, विचे 4-4 5-5 खाने ते चिट्टे रंग दी गिरी, बड़ी स्वादली बड़ी मिठी। मैं कहा हद हो गई, सारी बनावट बैंगन दी तरह, अंदरों ये होर दा होर फल। यकीन जानो जो खुद ना तोड़ते तो पए रहने सन, मैं नहीं खाने सन। रमज संसार विच परिपूर्ण परमात्मा छिलकियां विच फल लपेट के पेश करता है। सतपुरुष अवतारी पुरुष परमात्मा की गल भी कई दफा रमज विच करते हैं, रहस विच करते हैं। अगर रहस खोलना ना आवे, रमज खोलनी ना आवे, तो मनुख उपर ही उपर उलझ के रह जाए तो कई दफा बाद विच समा पा के मजाक का बायस बन जाता है। ज्ञान विज्ञान उसनों रद्द करके रख देंदा। जैसे भारत विच अज इस कहानी नूं रद्द करके रखे है, और सब तो पहले गुरु नानक कहने गल ये नहीं है। इस जमीन दे थल्ले एक धौले रंग दा बैल है, धौला रंग चिट्टा रंग, उन्हें एक सिंह दे ते धरती चुकी हुई है। जिस दिन वो थक जाता है तो दूजे सिंह दे उत्ते रखदा है, फिर धरती च पहुंचा लाउंदे ने, धरती हिलदी है, दराड़ां पैंदियां ने, तूफानी हवावां चलदियां ने, फिर पानी दे च उछाल पैदा होंदा है। पुराणक मिथिहास यह है। हुण इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल समझाते ने कि धौला बैल कौन है। लेकिन इस तो पहले सवाल खड़ा करना तो लाजमी सी। लड़ीवार इस पौड़ी के अर्थ भी नहीं चलते, पर चलाने पैणगे। इत्थे ये पंक्तियां लैणियां पैणियां ने। धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कौन जोर। महाराज कहते चलो मन लेने, इस धरती दे थल्ले धौला बैल है, ते धौले बैल दे थल्ले कौन है। उहदे आखो धरती है होर, वो होर धरती ते खड़ा है, फिर उस धरती दे थल्ले कौन है। फिर आखो भी दूजे धौले बैल ने चुकी हुई है, फिर उस धौले बैल दे थल्ले कौन है। ये तो लंबी गल चल पेगी, मुकण वाली नहीं। धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कौन जो। किसे थां पे ते कहोगे धौला बैल आपे ही खड़ा है, धरती तो बिना खड़ा है, ते इंजी आख दो धरती धौले बैल तो बिना खड़ी है, फिर इत्थे ही गल मुकाओ। इन्नी गल नूं लमकाण दा मतलब की गुरु नानक ये कहंदे धरती होर परे होर धरती दे थल्ले होर धरती, होर धरती दे थल्ले होर धरती, अनंत धरतियां ने उपर थल्ले। सब धरतियां ही धरतियां ने सानू उपर दिखाई देंदियां, अनंत ने पसारा, लंबा चौड़ा पसारा, बल्कि उपर थल्ले विज्ञान दे जगत विच ते मनदे भी नहीं, सब पसारा ही पसारा है। और सब धरतियां ने, अनंत धरतियां ने। ये धरतियां किवें होईयां अगों गुरु नानक दसणगे। पहले वो धौले बैल बारे दसदे ने। धौला बैल की है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धरती दे थल्ले धौला बैल है। फिर इत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा धौला बैल कित्थों आया, किवें आया, फिर उस दे थल्ले कौन है। उस दे थल्ले होर धरती है, फिर धरती दे थल्ले कौन है। होर धौला बैल है, फिर उस दे थल्ले कौन है। ये तो गल मुक्कण वाली नहीं। गुरु नानक इत्थे बहुत वड्डी विज्ञानक सूझ देंदे ने और कहंदे ने जेड़ी गल विज्ञान रद्द कर देवे वो सत बचन नहीं है। जेड़ी गल समय दे तकाजे नूं भी पूरा ना करे, अज ठीक समझी जाए तो कल नहीं, वो भी सत बचन नहीं है। जिन्हों समा पछाड़ के रख देवे, गल अपनी थां ते रह गई, समा अगे लंघ गया,
नहीं, जो समय की धार ते पूरी उतरे और हर वक्त सच है, ਉਹਨੂੰ सत बचन कहते हैं। जिन्हों समा रद्द नहीं कर सकता, जिन्हों विज्ञान रद्द नहीं कर सकता, जिन्हों तर्क ते ज्ञान भी रद्द नहीं कर सकता, ਉਹਨੂੰ कहते हैं सत बचन। बहुत सारे पुराणिक प्रसंग और इस्लामी ईसाई जगत दियां धार्मिक कहानियां अज समय ज्ञान विज्ञान ते पूरियां नहीं उतरदियां। ये भी मैं अर्ज करा, नहीं उतरदियां। हैरान ने कि समय दे नाल हुण बाइबल नूं किवें तोरीए, समय दे नाल हुण कुरान नूं किवें तोरीए। हकीकत है, नसरीन तस्लीमा ने बांग्लादेश की डेंटिस्ट डॉक्टर एक लड़की ने किताब लिख दी, इस्लामी शरा के खिलाफ। विचारी नूं भज के जर्मनी विच अपनी जान बचानी पई है। उन्हें कह दिता है अज समाज का तकाजा पूरा नहीं करदियां, ये शरा अज समय की धारा ते पूरी नहीं उतरती, ये शरा अज विज्ञान ते भी पूरी नहीं उतरती। डॉक्टर है, सियाणी सी, किताब लिख दी। सारा बांग्लादेश का शरई मुसलमान उसके पिछे पै गया, भज के जर्मनी जान बचानी पई है, अजे भी जर्मन दे। फिर सुलेमान रश्दी, उन्होंने भी कुछ ऐसा दिसिया, समय का तकाजा ये गल्लां पूरियां नहीं करदियां, विज्ञान ते भी पूरियां नहीं उतरदियां, ते समाज दे विच इन्हां नूं रखना भी ठीक नहीं। उन्हें भी लिख दिता, पर उन्हें कहानी के रूप में पात्र बना के लिखिया। उस विचारे नूं इंग्लैंड दे विच अपनी जान बचानी पई, अजे तक उत्थे। खुमैनी जद जिंदा सी ते उन्हें कहा सी मैं $13 लाख उसनूं देंगा जिहड़ा इसनूं मार देवे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी ते काफी खर्च कर रही है, अजे तक वो मौजूद है वो हिंदुस्तानी कश्मीरी है, मुसलमान सुलेमान रश्दी, लेकिन जान बचा के बैठा होया है इंग्लैंड दे विच। क्यों? उन्हें वो लिख दिता है ये सब कुछ ज्ञान विज्ञान ते समय का तकाजा नहीं पूरा करता। समा बहुत अगे लंघ गया है, ये शरा पछड़ गई है। विज्ञान बहुत अगे लंघ गया है, ये धर्म पछड़िया है लगता है। हुण कौन बर्दाश्त करे? जज्बाती कौम। उत्थे बांग्लादेश तो नष्ट के उस लड़की नूं नसरीन नूं जर्मनी दे जान बचानी पई है, ते सुलेमान रश्दी नूं इंग्लैंड दे जान बचानी पई। जज्बाती कौम। लेकिन रश्दी ने फिर भी कहा सी ठीक है, फतवा सही मैनू मारन दा, सच्चाई किसी दिन उगड़ेगी। इस समय का ज्ञान का विज्ञान का तकाजा पूरा नहीं करती, नहीं करती। हुण मैं ये किधरे अतकथनी भी नहीं करता। धन गुरु नानक कुछ ऐसी गल नहीं कहते जो समय का तकाजा ना पूरा करे, वक्त का तकाजा पूरा ना करे, ते ज्ञान विज्ञान की कसौटी ते पूरी ना उतरे। ऐसी गल ही नहीं करते। एक बोल भी तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे चों नहीं लभ सकते। चलदा जाए समा, चलदा जाए समा, गुरु नानक की गल समय तो अगे ही है। एक साइंटिस्ट की खोज तो भी अगे दी है। खोज खोज के जिथे साइंटिस्ट पहुंचन गए, गुरु नानक उथों की गल कर रहे हैं। महाराज कहते ने चलो थोड़ी गल भी रखिए, धौला बैल है ते चुके होया जमीन, पर इस ढंग नाल मनो, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिनसू। धौला बैल की है, धर्म है, नियम है जो परमात्मा ने बनाया। उस परिपूर्ण परमात्मा का बनाया होया एक नियम है, धर्म है। और ये मन लेंदे आ धर्म का रंग चिट्टा सफेद, चार रंगां की गल
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚूंकि ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਵਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। मैं कई दफा अर्ज करता हूं, 90% पुराणक प्रसंग अज ज्ञान विज्ञान समय ते पूरे नहीं उतरते पे, इस वास्ते लोग पढ़ते भी नहीं पे। पिछले दिनी आंकड़े आए सन, कोई 1000 विच एक अध कोई हिंदू पुराणा नूं पढ़दा है, कोई नहीं पढ़ता। वो साखियां ही ऐसियां ने, वो प्रसंग ही ऐसे ने, ज्ञान विज्ञान समय की कसौटी ते पूरे नहीं उतरते। जिमें एक दो मैं थोड़े सामने रख दिया जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ दे च लिखे ने। सृष्टि किवें बनी, एक पुराण मारकंडे पुराण का जो लंबा चौड़ा जिक्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है। थोड़ी जिहियां पंक्तियां मैनूं याद ने, थोड़े सामने रखा। साहब कहंदे ने, एक सरवन ते मैल निकारा, तांते मड़ के तब तन धारा, दुतिया कान ते मैल निकारी, तांते भाई सृष्ट ए सारी। ये सृष्टि किवें बने? खीर सागर दे विच विष्णु भगवान सुता होया है, भगवान सुता होया है। हद हो गई, बस दा ड्राइवर किधरे 1 सेकंड लई सौ जाए, गई बस, गए मुसाफिर 1 सेकंड लई। अरबां खरबां सूरज चंद तारे चल रहे ने, आवाज तो भी तिखे। दिन रव चले निस सस चले, तारका लख पलोए, भगवान सुता होया है। इस सब कुछ दा ड्राइवर सुता होया है, चलाने वाला भगवान सुता होया है। उन्हें सुतियां ही सुतियां अपने एक कन तो मैल कड्डी, एक सरवन ते मैल निकारा, तांते मद के टब तन धारा। उस तो 2 दैंत बन गए, मद के टब। दुतिया कान ते मैल निकारी, तांते भाई सृष्ट ए सारी। दूजे कन चो मैल कड्डी ते सृष्टि बन गई। ये जो धरती है ये विष्णु दे कन्ना दा मैल है, कन चो कड्डी। हुण मैं अर्ज करा, किन्ने क वड्डे कन होणगे फिर उन्होंने फिर मनुखां दी श्रेणी च गिणी है, वो व्यक्ति होवेगा। पर वो जो कहण दा ढंग है, जो पुराणक प्रसंग है, ज्ञान विज्ञान समय की कसौटी ते पूरा नहीं उतरता। कहंदे ने अगस्त मुनि तमिलनाडु दा सी, सागर दे तट ते उसदी जोगी सी। 1 साल जो भारत विच रामायण टेलीकास्ट होंदी रही, ये सब कुछ दिखाया जाता रहा। इस 20वीं सदी विच, इस विज्ञानक युग दे विच भी ये सब कुछ पुराणक जिहड़े प्रसंग ने, गाथावां ने संसार बारे दिखाई जांदियां रही। अगस्त मुनि नूं गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? उन्हें जिहड़ी झुग्गी बनाई सी, समुंदर दी लहर ने डोब दित्ती सी। समुंदर ते गुस्सा आया ते गुस्से विच सारा समुंदर 2.5 चुलियां दे च पी गया। उस रामायण दे प्रसंग दे च दिखांदे ने, ये सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होया। और खुशकिस्मती समझ लो, ये दृश्य मैं उस दिन हैदराबाद विच देखिया सी। किसी दे घर चाह पानी नाश्ते ते गए तो 10 बजे रामायण बकायदा प्रोग्राम आउंदा सी, रामायण दा दिखाया जांदा सी टीवी ते, तो सामने चल पिया, मैनू देखण नूं मिलिया। फिर तो मेरे अंदर ये शौक पैदा होया, क्योंकि इतवार दिखाते सन भी ये दृश्य कोई मेथों ओझल ना होन। अज दे युग च भी ये दिखाई जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। 2.5 चुलियां दे चो सागर पी गया। फिर उसने मल मूत्र दे राही कढ़िया, समुंदर एक खारा हो गया। इस तरह खारा होया,
इंज खारा होया, हैरानगी। ये सब कुछ दृश्य दिखाया गया। एक सरवन ते महल निकारा, कलगीधर पिता कहते ने पुराण प्रसंगां नूं सामने रख के कहते ने मैं सिर्फ टीका कीता है, अनुवाद कीता है, मेरे ख्याल नहीं ने, मेरे विचार नहीं ने। दसम कथा भागवत की बाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाए। ऋषि मुनिया ने, प्राचीन ऋषि मुनिया ने रमज दे च रहस दे जो गल आखी ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਹੂ ਬਹੁ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਤ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲਾ ਬੈਲ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਚ। पर धर्म नूं धौला क्यों आख्या? धन गुरु नानक देव जी महाराज चार रंगां दा जिक्र एक शब्द विच करदे ने श्री राग विच। रत्ता पैणन मन रत्ता, सुप्पे दी सतदान, नीली स्याई कदा करनी, पहरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जो बन तेरा नाम बाबा, और पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। रत्ता पहनन मन रत्ता, प्रभु दे नाम दे च मन जो रत्ता गया, असी लाल रंग दी पोशाक पहनी है। कहते न राग रंग संगीत दा अपना एक रंग है, हर गल दा अपना एक रंग है। मानसिक अवस्था कुछ अंदर धारियां पैदा कर दी है, रंग पैदा कर दी है। बारीक बीना लोगों ने उन्हां रंगां नूं वेखिया। जद प्रेम दी हालत दे च होवे मनुख, खास करके प्रभु प्रेम दी हालत दे अंदर जिहड़े रंग दी धारी बनदी है ओ लाल। भारत दे बेशतर साधुआं ने जे भगवा भेस धारण कर लिया, उहदे पिछे कुछ राज सी। दूर क्यों जाओ, चार उदासियां जो गुरु नानक देव जी महाराज दियां ने भगवे भेस दे च ने, लाल रंग की पोशाक, हैरानगी है। रत्ता पहनन मन रत्ता, ये जो मन लाल रंग नाल रंगिया गया है, ये असी लाल रंग की पोशाक पहनी है। साधुआं नूं जद अपने अंदर ये लाली दिखाई दिती, उन्होंने बाहर भी लाल रंग के कपड़े पहन लए। आद काल तो धार्मिक ज्ञानी कहते रहे हैं, जिहड़ा रंग किसी नूं बहुत प्रभावित करे, उस तो उसकी मनोदशा का अंदाजा लाया जा सकता है। जिहड़ा रंग जिसनूं बहुत प्यारा लगे, उस तो उसकी मानसिक अवस्था का पता चल सकता है। भावें कई कई रंग के कपड़े मनुख पावेगा, कोई खास रंग उसनूं ज्यादा प्यारा लगता है, ज्यादा चंगा लगता है। भावें कई तरह के रंगां दीयां धारियां मनुख दे मन दे च बनदियां ने, पर कोई रंग खास विशेष रूप दे च आउंदा है, बार बार बनता है, ज्यादा बनता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ये मन जो प्रभु प्यार दे च रंगिया गया, रत्ता गया, लीन होया है। खून का रंग लाल है, जिंदगी का रंग लाल है, प्रभु प्यार का रंग भी लाल बने। भारत दे बेशतर साधुआं ने भगवा भेष धारण कर लिया। सिद्ध जोगियां ने गुरु नानक तो पूछ भी लिया सी, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ये भेष निवासी, ये भेख क्यों धारण कर लिया है भगवा। गृहस्थी होंदियां होया ये त्यागियां वाला बाणा क्यों पहन लिया। सतगुरु ने कहा सी थोड़े दर्शन करने लई, क्योंकि तुसी गृहस्थियां कोल गल सुननी ने, इस वास्ते असीं इस बाणी ही तुहानूं सुणाण आ गए हां। दसना है थानू भी, जो कुछ सानू लभ्या है वंडना है, असी थानू भी देना। मुख्तसर में अर्ज करा, रत्ता पहनन मन रत्ता, सुप्पे दी सतदान, सत तो मुराद संतोख। ये जो परोपकारी बिरती, दानी बिरती के अंदर संतोख पैदा हो गया, ये असी चिट्टे रंग की पोशाक पहने है। नाम जपदियां जपदियां जद परोपकार की लहर अंदर पैदा होती है, जगत नूं सुख मिले,
और जगत नूं मैं वत तो वत सुख देवां। ऐसी भावना जद उसके अंदर पैदा होती है, ਉਹਦੇ अंदर चिट्टे रंग की धारी बन जाती है। गुरु नानक ऐसा जिक्र कर देना। कुछ बेशतर साधुओं ने अगर चिट्टे रंग नूं पसंद कर लिया और इसे ही कपड़े च रहे, यही बस्तर पहने, इहदे पिछे भी उन्हां दी मनोदशा कम कर रही सी। सुप्पे दी सतदान नीली सियाई कदा करनी, पैरन पैर ध्यान नीला रंग काला रंग कदा करने। मनुख दे अंदर कुछ नाश करन दियां भी बिरतियां ने, बर्बाद करन दियां। संत दे अंदर भी हैं, वो अपनी वासना, असीम लोभ, सीमा तो वधिया होया अहंकार उसनूं मारदा है। तो मारन लई ते वीर रस चाहिदा है, ते रोस भी चाहिदा। मैनूं ये कबूल नहीं, मैं इन्हां नाल सहमत नहीं, तां ही उन्हां नाल संघर्ष करेगा। कहते ने जो अपने विकारां नाल संघर्ष नहीं कर सकिया, वही संसार नाल संघर्ष करता है। जो अपने विकारां तो नहीं जित सकिया, वही संसार नूं जितण दी कोशिश करता है। उहदी शक्ति फिर बाहर लोगां नूं मारन दे च या जितण दे च लगदी है। ओनूं हरावां, ओनूं हरावां, ओनूं पिछे सुटां, ओनूं पिछे। शक्ति है, समां ते शक्ति। एक संत इस गल दे च खर्च करदा है, हंकार नूं मैं किवें पिछे सुटना है, घरों कढना है। इस असीम लोभ नूं मैं किवें मारना है। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे। तो मारन लई वीर रस्ते चाहिदा है, ते मारन लई रोस भी चाहिदा है। काला रंग रोस दा रंग है, मैनूं ये कबूल नहीं। अज भी भारत दे ते सारी दुनिया च जिस गल दे ते रोस है, मुजाहरा करना है, लोग काले बिल्ले बनते हैं। अज भी काला रंग मौत दा नहीं, रोस दा है। जैसे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, जबे बाण लागयो तबे रोस जागयो। हरी चंद दा मारिया होया बाण जिवें सानू लगया, साडे सीने रोस जाग पिया साडा। उस तो पहले असीं शांत सी, रोस पैदा हो गया। लंबा चौड़ा प्रसंग है दसम ग्रंथ का। रोसमई हालत दे च मनुख दे अंदर जिहड़े रंग दी धारी बनदी, वो काला है। सारे सूफी फकीरां ने काले कपड़े पहने सन। बाबा फरीद भी कहते हैं, काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस, गुनही भरिया मैं फिरां लोक कहन दरवेस। इस सारे सूफियां नूं यह रंग क्यों पसंद आ गया? मन की हालत ते रोस है, कबूल नहीं है। यह हंकार, ये लोग, इससे सानू रोस है। बार बार जो विकार दे उत्ते रोसमई बिरती पैदा होंदी सी, ते अंदर जो धारी बनदी सी काले रंग दी, तो बाहर भी काले कपड़े पहन ले। इन्हां ने काला जामा धारण कर लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज का बेशतर हिस्सा नीले बाणे दे सी। नीला बाणा वीर रस है, क्रोध नहीं, वीर रस, जोश, जिहदे च होश भी है। होश वाला जोश, बेहोशी वाला जोश क्रोध होंदा है। उहदे च कख भी समझ नहीं आती मनुख। क्रोध ते हानिकारक है, दूजे की भी हानि करेगा, अपनी भी करेगा। और साहिब कहते हैं, पता नहीं कितने दिनों का कीता होया धर्म छिन मात्र क्रोध करदियां नाश हो जाता है। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। सारी जिंदगी धर्म कर्म कीते हवन, छिन मात्र क्रोध करदियां गए। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। खैर लमकावा ना। वीर रस, ऐसा जोश जिस दे च होश भी है, निरा जोश नहीं, फोका जोश ते क्रोध कहलांदा है। क्रोध दे च मनुख दूसरे नूं हानि पहुंचा सकता है। वीर रस दे च दूजे नूं हानि नहीं पहुंचांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, बालाचार गी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। जफरनामा। ऐ औरंगजेब, तलवार चुकना मेरा कोई शौक नहीं,
ये मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है। हथ जोड़ के विचार नाल हलेमे नाल तू अपने कदम रोके नहीं, और तू अपने कदमां दे थल्ले मासूमां नूं दलदा जा रहा है। मजबूरन मैनूं ये तलवार चुकनी पई है। मैं चुकनी नहीं सी, मेरा शौक नहीं है, ये मेरी रुचि भी नहीं है, पर मजबूरी। बालाचार गई दरमिया आमदम, लाचार हो के मैं ऐसा कीता है। मेरा शौक नहीं है, मेरी खुशी नहीं है। ये शस्त्र चुकना मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी है। बालाचार गई दरमिया आमदम, क्योंकि तू अपने पैरों दे थले मसलूमां नूं इस तरह लिताड़दा जावें, ये मैनू कबूल नहीं, मैं तेरे कदम रोकने न। बालाचार गई दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। कौन कदमां नूं रोकेगा जिहदे अंदर रोस भी है ते जोश भी है, वीर रस भी है। रोस दे समय अंदर काले रंग दी धारी बन जाती है, जोश वीर रस दे नीले रंग दी धारी बन जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी बाबर नूं कहंदे ने, तू बाबर नहीं जाबर है, पाप की जंज ले काबलों दाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। बादशाह दे मूंह दे उत्ते इस ढंग नाल कहना बहुत वड्डी गल है। तू बाबर नहीं है, जाबर है, पापियां दी जंज लेके आ गए हैं ते भारत नूं तू धेता घर समझ लिया ते लुट रहे हैं। रोस है, इस तरह की रोस की हालत दे जो धारी बनती है काली बनती है। और बेरस नाल जब जालिम दे कदमां नूं रोकना है तो जो धारी बनती है नीली बनती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते नीली स्याही कदा करनी पैरण पैर ध्यान। ये जो कदा करने कट देना है, विकारां नूं कट देना है, अनर्थ नूं। ऐसी जो अंदर रुचि पैदा हुई है कि मैं काले रंग की पोशाक पहनी है, मैं नीले रंग की पोशाक पहनी है, पैरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा, और पहनन खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मेरे अंदर जो रंगां की धारी बनती है मैं वही कपड़े पहनदा, मैं उस तरह के वस्त्र पहनदा। धन गुरु नानक। धौल धर्म, धर्म नियम दे जद जिंदगी चले, मर्यादा दे जद जिंदगी चले, किधरे भी बेमर्यादा ने। उस हालत दे जो अंदर धारी बनती वो चिट्टी है। महाराज कहते धर्म चिट्टा है, सफेद है, सुलह गुण है, ये कल कलेश नहीं है। धौला बल्द की है, धर्म है। धौल धर्म दया का भूत, ये प्रभु की दया तो पैदा होया है। ये जो नियम है प्रभु ने अपनी दया तो पैदा किया है, जिसने एक सार संतोख धारण करके सारी कायनात नूं टिका के रखे होया है। संतोख सूअर सूअर होने दे खुश है, सूअर शेर नहीं बनना चाहता। शेर शेर होने दे खुश है, शेर सप नहीं बनना चाहता। सप सप होने दे प्रसन्न है, सप कुत्ता नहीं बनना चाहता। कुत्ता कुत्ता होने दे प्रसन्न है, गऊ नहीं बनना चाहता। और यकीन जानो गऊ गऊ होने दे प्रसन्न है, घोड़ा नहीं बनना चाहती। घोड़ा घोड़ा होने दे जो है प्रसन्न है, चीता नहीं बनना चाहता, रिछ नहीं बनना चाहता। कायनात दे संतुष्टता है, बनस्पति दे पशुओं दे पक्षियों दे मनुख असंतुष्ट है। इस वास्ते कहते सारी कायनात धर्म नाल चल रही है, मनुख अधार्मिक है, ये संतुष्ट नहीं है। ये अपनी प्रालवत ते संतुष्ट नहीं, ये अपने परिवारक संबंधों ते संतुष्ट नहीं, ये अपनी प्रालवत उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। सारी जिंदगी असंतुष्टि च बतीत होती है, जन्म तो लैके मरदे दम तक। इस वास्ते धर्म की शिक्षा भी सिर्फ मनुख नूं देनी है, पशु पक्षियों नूं नहीं। वो तो संतोख दे च ने, वो तो धर्म दे च जी रहे हैं। जो धर्म जो मर्यादा प्रभु ने बना दी, कोई पशु बनी हुई मर्यादा की उल्लंघना नहीं करता। शेर भावें हिंदुस्तानी होवे, भावें पाकिस्तानी होवे, ते भावें चीन दा होवे, ते भावें जापान दा होवे, उहदी रहनी बहनी इक्को है, आवाज इक्को है, खान पान भी इक्को ही है।
वो घास नहीं खाएगा, मांस खावेगा। तो गऊ भावें किसी जगह दी होवे घास ही खाएगी। आहार जो बजवा परिपूर्ण परमात्मा ने बना दिता है नियम पूर्वक, ये सारा पशु जगत नियम पूर्वक जी रहा है। दूसरा कोई पशु दूसरे जैसा नहीं होना चाहता। मनुख मनुख की नकल करता है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। अगर सिकंदर ने इतनी दुनिया भी जित ली तो उस तो भी कोई अगे सी। उन्होंने अरस्तू नूं वेख के ईरखा हो जाती सी। सिकंदर ने कह दिता सी, तू ज्ञान दे च अगे है, तू सूझ समझ दे च अगे है, तू शांति दे च अगे है, और तेरा अगे होना मैनू अखड़दा है। अरस्तू ने भी उसनूं कहा सी, हर समय हर वक्त कोई ना कोई अगे होवेगा, कोई ना कोई अगे होवेगा, लाजमी होवेगा। ये भावना उतने चिर तक मिटदी नहीं जितने चिर तक सुरत शब्द नाल ना जुड़े। मनुख नकल करता है। मनुख जिथे खड़ा है, जिस तरह का है, इस विच संतुष्ट नहीं है। संतोख था परखिया जन सूद, सूरज चंद तारे, जो नियम बन गया संतुष्ट ने। भावें जड़ ने संतुष्ट ने, पशु पक्षी थोड़े जिहा चेतन ने संतुष्ट ने, मनुख ज्यादा चेतन हो गया असंतुष्ट है। इसने अपना चेतनपना, अपनी सियाणप सारी असंतुष्टि वधाण विच लगा दी। तो परिवार तो असंतुष्ट है, पति पत्नी तो असंतुष्ट है, पत्नी पति तो असंतुष्ट है, बच्चे मां बाप तो असंतुष्ट ने, मां बाप बच्चे तो असंतुष्ट ने, भरा भरा तो असंतुष्ट है, अपनी प्रालब्ध तो असंतुष्ट है। चारों पासे असंतुष्टि का माहौल थानू मनुखी दुनिया विच मिलेगा। फिर असंतुष्टि करके कल कलेश, वो जो दूसरा मेरे को अगे है मैं उस तो अगे हो जावा। तो हुण मैं उस तो अगे हो जाना, या तो मैं तिखा चला या दूजे नो पिछे घसीटा। तो ये संघर्ष सारी दुनिया चलता है, मनुखी दुनिया चलता है। इस वास्ते संतोख की शिक्षा देण वास्ते अवतार मनुखी जगत विच आउंदे ने। सारे धर्म ग्रंथ मनुखा लई ने। एक सुभाग है मनुख कोल परमात्मा जैसा हो सकता है, एक बदकिस्मती है मनुख कोल पशुओं तो भी महान पशु हो सकता है। चेत रे चेत अचेत महापश, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तुम पशु नहीं महापशु है। अगर तू पूरा मनुख होने की कोशिश नहीं की थी तो महान पशु ही बन जाएगा, और कुछ नहीं। तो परिपूर्ण परमात्मा की दया तो ये धर्म पैदा होया है, जिसने संतोख धारण किया है, और कायनात जो है टिकी हुई है। मनुख के अंदर परमात्मा उस दिन प्रफुल्लित होता है जिस दिन इसके अंदर दया पैदा हो जाती है, संतुष्टि पैदा हो जाती है, अपने विच प्रसन्न है। जैसा मैं हाँ ठीक हाँ, ये प्रभु जैसा तू रंग दिता, जैसा तू रूप दिता, जैसे परिवारिक संबंध बनाए ठीक ने, ठीक ने। मात पिता सुत बंधक भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे प्रभु ये भी तू मेरी सहायता की थी, तू मां दिती, पिता दिती, सारे संबंध दिते ठीक ने, कबूल ने, मैनू परवान ने। ये परिवारक संतुष्टि हो गई, ये कईयां कोल होंदी है। भावें सारे मैंबरां तो संतुष्ट नहीं होवेगा कोई भी, बच्चियां तो संतुष्ट होवेगा, हो सकता है भरा तो संतुष्ट ना होवे, भरा तो संतुष्ट होवेगा, हो सकता है पत्नी तो ना होवे, पत्नी तो संतुष्ट हो सकता है अपने बच्चियां तो ना होवे। सारे मैंबरां तो ते संतुष्ट होना बहुत औखा है। घट लोग इस तरह के जो है दिखाई देंगे ने, भाई ठीक है जिस तरह का संयोग बनया ठीक है, जिस तरह का है ठीक है। तो इस विच किसी को जे सफलता भी मिल जाए, जैसा है ठीक है, जिस तरह का है ठीक है, अगां चल के कारोबारी दुनिया प्रालब्ध दे संतुष्ट होना बहुत औखा है।
नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक। क्योंकि इसे पौड़ी विच अखीर विच चारां दे सतगुरुदेव जी महाराज यही कहते ने, जो तुद भावे साई बलिकार, जो तुहानू भावदा है वो ठीक है। मैं जो कुछ कीता है, सफलता मिली है असफलता मिली है ठीक है, अगर इस तरह मैं मनदा तो परमात्मा वाला सुभाव हो गया, इज्जत हो गई बेइज्जती हो गई ठीक है, चलो ठीक है ऐसा होना ही सी। चलो इस दे एक दो बोल मैं थोड़े सामने रख दिया, भावें समा हो गया गल स्पष्ट हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पता है चिंता क्यों होती है? चिंता दो कारणों करके होती है। और गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक के जो अर्थ किए जाते हैं वो नहीं ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं कतई नहीं ने। जिस ढंग नाल लोकी पढ़ते हैं तो जिस अर्थां नाल पढ़ते हैं अर्थ नहीं ने। भावें बड़ा सरल ये श्लोक है, भाषा के लिहाज नाल ज्ञान के हिसाब नाल सरल नहीं है। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। चिंता केड़ी गल दी होंदी है? प्रथम, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। एक दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहता ऐसा होना चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। ये दो कारण ने चिंता दे, हर मनुख चिंता तो रहे। मैं एक दफा फिर दोहरावा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, कम से कम मेरे नाल ना होवे, मैं नहीं चाहता, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। ये गुबार है, ये बोझ है। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहता, मेरी इच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ये कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता केड़ी गल है? गल है इस श्लोक के अर्थ ये ने, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। अनहोनी होंदी नहीं, किसे नाल नहीं होंदी। जिवें कई बुढ़े हो जाते कहते अनहोनी हो गई, केड़ी अनहोनी हो गई? बुढ़े हो गए। अनहोनी तो ही तो होनी है, सब नाल होनी है, ये तो होना है, प्रभु का नियम है। अनहोनी कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, किसे नाल भी नहीं होती, अज तक नहीं हुई। महाराज कहते जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होवे तां चिंता करो। अर्थ इसदे ये ने, तां चिंता करो कि अनहोनी तो होंदी ही नहीं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इतनी गल समझ च आ गई, मनुख अठे पैर समाधि च उदी रजा दे च। मैं एक दफा फिर दोहरावा, उम्मीद तो है पकड़ च आ गई, आप सारे सियाने सत्संगी बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। और यकीन जानो, मनुख जो कुछ चाहता है वो नहीं होता। यह भी मैं अर्ज करा, फिर तो यह है रब ते कुछ भी ना होया, परमात्मा ते कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, पर अंदर चिंता है किधरे हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता, पर अंदर चिंता मता ना होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जो तुद भावे साई बलिकार, जो उसनों भावदा है वही होंदा और भला है, वो मेरे लिए भला है। मैं जो चाया सी नहीं होया, भला है, और जो मैं नहीं चाया सी हो गया है, भला है। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा, खेड इतनी सौखी नहीं है। जो कुछ मैं चाया सी
नहीं होया रोंदे पिटदे देखी दे। जो मैं नहीं चाहया सी हो गया रोंदे पिटदे देखे ने। क्यों हो गए? तो मैं नहीं चाहया सी, तू नहीं चाहया सी, प्रभु की चाहत ते ही सी। ओदी चाहत नाल जगत चल रहा है, तेरी चाहत नाल नहीं चल रहा। ओदे होने नाल, ओदी होंद नाल, ओदी चाहत नाल जगत चल रहा है, तेरे नाल नहीं चल रहा। चलो मैं एक दफा फिर दोहरा के समाप्ति करना, इस वक्त गाना चला। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता। बड़ी प्रबल चिंता है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। ऐसा होना चाहिए है, मेरी चाहत है, मेरी बड़ी प्रबल कामना है, ऐसा होना ही चाहिए। अंदर चिंता है मता ना होवे। धन गुरु कह रहे ने नहीं होंदा, नहीं होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, जो होंदा है होंदा है। तेरी चाहत की गल नहीं, चाहत प्रभु की। इतनी गल समझ च आ जाए, मनुख हर हालत विच, जन्म दे मरण दे, जवानी दे, बुढ़ेपे दे, खुशी दे, गमी दे, नफे दे, नुकसान दे आनंदित है। ठीक है, जो है ठीक है, ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावे साई बलिकार। तो इस पौड़ी दे 5-7 प्रसंग ने। प्रथम पंच, ये पंच करते दे करने दी विचार नहीं कर सकते। ये जो आखिया जाता है कि धौला बैल उसने जमीन चुकी हुई नहीं, साहब कहते धौला बैल धर्म है, प्रभु की दया तो पैदा होया और उसके संतोख तो पैदा होया, और जिसने बिल्कुल संतोख धारण करके जगत विच रखे होया है। परमात्मा ने इस तरह बना के रखे है, मनुख को खुल दे दी है, सियाणप देती थी, ते सियाणप दे नाल की हो गया? असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट मनुख अधार्मिक होंदा है, संतुष्टि धार्मिक होंदा है। बस इतनी गल है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगलियां पंक्तियां दी विचार कल करांगे। इस पौड़ी तो अगे लंघे, फिर एक एक पौड़ी 2-2 पौड़ियां करते जावांगे। पर यह पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी। अखरी अर्थ करके मैं लंघ जावां तो घर घर टीके पैन तुसीं पढ़ लोगे। मैं नहीं चाहता खुलासा किए बिना अगे लंघा। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगां चल के मेरे पातशाह इस विचार नूं जिवें खोलणगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने कल सतगुरु ने जैसी बख्शिश की थी विचारां रखांगे। ਇੱਥੇ ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। आनंद साहब का पाठ जो है सरवण करो। ਇੱਥੇ ही समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।